Okay, right. We can start. We are doing today. Yesterday only we have already started that Lagrange's mean value theorem, right? Statement एक बार बोल दीजिए आप. We can start our problems. Come on. Come on. Tell me the statement. F of x be a function Okay. such that f of x is continuous on closed interval a comma b. Okay. F of x is differentiable on open interval a comma b. Okay. Then there's a c belongs to a comma There b exists. such that There exists a point. There exists there a exists point. a point C c belongs belongs to a comma b such such that. that Come f on. dash c is equal to f of F b of B minus f of minus a is equal f by of a by by b minus a. exactly correct. So now we are moving to this question. It is related to tan. Uh, if A is less than B, we have to prove this one condition is there. Sometimes it may be given in question paper that using Lagrange's mean value theorem. Sometimes it may not be given. We should understand that inequality Yes, sir. problem is solved by using Lagrange's mean value theorem only. Here we have a specific condition also to prove, that is pi by not 4, it is pi by 4 it is plus 3 by 25 is less than tan inverse of 4 by 3 is less than pi by 4 plus 1 by 6. So, Sir, ये 3/25. is there in our question? We have to prove that. First ये prove करना है, फिर ये deduce भी करना है conditions of. Okay? Okay. Hence, deduce that deduction is also there. Some values we have to assign, then you will get your answer. Okay, need not to worry, I am here. Okay, let us start. So, let me repeat the statement of Lagrange's mean value theorem. Here f of x is continuous, f of x is differentiable, closed interval and open interval. And then only we can Yes, get a point from where we can draw a tangent. That tangent is parallel to the given line AB. That is the meaning of Lagrange's mean value theorem. So we don't have f of x, so basic requirement, let us fulfill it. Let us assume that f of x is equals to what to take? Yesterday I gave the idea, that is tan inverse of x we have to take. If you want to prove cos, then you take cos. If you want to prove tan, then you take tan. If you want to prove sine, then you take sine. That's okay. And here we don't have the yes, interval. sir. So let me take the interval will be closed interval a comma b. Now, as I said, condition number 1 and 2 together only we write. F dash of x, if you want to do the derivative of tan inverse of x, that you should know in intermediate level we have done, that is 1 by 1 1. by 1 Okay. plus x square. So here we write, क्या लिखेंगे यहाँ पर? Therefore, f of x is continuous because trigonometric function is continuous and differentiable. Together I am writing continuous and differentiable on closed interval a comma b and open interval a comma b respectively. This line itself indicates that we have done both. Understand? Respectively. Yes, sir. Now by ऐसा भी लिख सकते हैं f of x satisfying all the conditions, then there exists a point, or otherwise by Lagrange's mean value theorem, there exists a point, there exists a point C belongs to a comma b such that, come on, tell me now, it's your turn.
f dash of c is equals to, come on, f of f f of of b b minus minus f of a f of a by by b minus. b minus a. F dash of c की value from here we can get 1 by 1 plus c square is equals to f of b is nothing but it is tan inverse of b minus tan inverse of Minus tan inverse of a. by b minus a. We take this is equation number 1. Now we take the advantage of this point. Let me underline that. This point advantage I will take it. Since c belongs to a comma b, the value of c should lie between a and b. I think your friend did not join. She is right now in Saudi Arabia. Maybe the time is little different. Okay, since give me the answer, Hafsa. C belongs Yes, to sir. a comma b. What do you mean by this? The value of c should lie between a and b. We make this format. It means what to do? We have to square it. A square is less than Yes, c sir. square is less than b square. Now we have to add अपन one. ये स्क्वायरिंग क्यों करते सर? ये देखिए ये फॉर्मेट बनाना है. पहले सी स्क्वायर बनाना है, फिर वन ऐड करना है, फिर रेसिप्रोकल करना है. ये फॉर्मेट बना दिए ओके. तो ये वैल्यू अपन इधर रख दे सकते हैं एज इट इज, है ना. यस सर. 1 + a² आप लोग कॉलेज में ये सब चीज़ें नहीं करेगा, करे थे. भूल गए. यस सर. Taking reciprocal, if you take the reciprocal, the inequality has been changed. Less than will be converted to greater than 1 by 1 plus c square, greater than 1 by 1 plus b square. Now look at that. This frame already we have done here. This frame we have to substitute as it is. 1 by 1 plus a square. From the equation number 1, I can say the value of 1 by 1 plus c square is what? समझ में आया ना क्यों बनाया ऐसा अपन? कई को स्क्वायरिंग करे, कई को ऐड करे. हाँ सर. Yes. To get this answer easily, tan inverse of b by b minus a is greater than 1 by 1 plus b square. Now multiply b minus a on both sides because in our requirement result we don't have b minus a in denominator. दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए. b minus a by 1 plus a square is greater than tan inverse of b minus tan inverse of a is greater than b minus a by 1 plus b square. अब अपन क्या करेंगे? अभी रिजल्ट अपना प्रूव नहीं हुआ. a इज ग्रेटर देन b को अपन b इज लेस देन a भी लिख सकते हैं ना. तो इसका पोजीशन चेंज कर देंगे, मतलब इसको उधर कर देंगे. इनइक्वालिटी चेंज हो जाता, अपना आंसर प्रूव है. दिस इंप्लाइज, आई एम राइटिंग दिस वैल्यू फर्स्ट, b minus a by 1 plus b square. The inequality will change. Greater than will be converted to less than tan inverse of b minus tan inverse of a is less than b minus a by 1 plus a square. अब क्या हो गया? कभी कभी आप लकी हो जाते. कैसा? खाली इतना रिजल्ट ही पूछता, हो गया, आपको मिल जाता 6 मार्क्स. कभी कभी आपका एग्जामिनर का माइंड अगर खराब हो गया तो उसके साथ कुछ डिडक्शन भी पूछता. डिडक्शन कैसा करें? पहले तो रिजल्ट को अपन वापस से लिख देंगे, क्या प्रूव करें अपन. b minus a यस by सर. 1 plus b square, 1 plus b square. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से. एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ. tan इनवर्स ऑफ b माइनस, अगर मैं किसी कॉलेज का पेपर सेट करा तो वो उनके कॉलेज के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन तो जरूर देता हूँ. ओके सर. ये इक्वेशन नंबर 1. आप हिंट कुछ दे रहे हो, समझ जाइए, आप समझ जाइए. ये इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे. सो 1 तो अपन ऑलरेडी बना दिया था. अब इसमें कुछ वैल्यूज को असाइन करना पड़ेगा. व्हाट टाइप ऑफ वैल्यूज? पुट
Now look at this result. What we proved? What do you want to prove? Tan inverse of 4/3 करना है, तो जो भी ब्रैकेट की वैल्यू है, that is our value of b actually. That is our value of b. Now what is a should be taken? a के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, ये क्या है? What is this? Can you read? What is this? 5/4. What is tan pi by 4? Tan pi by 4. Tan 45 degree is 1. 45 degrees. Nothing but our a value. ये अपनी a value होती, जो भी tan pi by 4 का आंसर रहता वही अपनी a वैल्यू रहती। ठीक है ना? कल लास्ट क्लास में मैं कॉस्ट में भी यही काम करा था, देखिए याद है आपको? Yes, sir. Yes, a value is 1. So if you put here b minus a, 4/3 minus 1/1 plus b square, 16/9 होता स्क्वायर करने के बाद, लेस देन tan इनवर्स ऑफ 4/3 minus tan inverse of a value is 1 is less than b minus a, again 4/3 minus 1, 1 plus, मंडे से आपको कॉलेज रेगुलर है अभी? यस, मैसेजेस आ आज इस गए वाले को लोग आओ बोल के जी? 10:30 से क्लास में हूँ, मैं कैसे जाऊंगी नहीं कॉलेज? नहीं, छोड़ दीजिए, अभी अब यहाँ पर कोई है भी नहीं फिलहाल। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट। आपको, आप एक बार मंडे मेरे पास आके मिलिए, कुछ डाउट्स वगैरह है तो मैं देख लेता हूँ। हाँ, tan इनवर्स ऑफ, ओके सर। मालूम है ना, कैबिन मालूम है ना? यस सर। ओके, माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 कैन बी रिटन एज tan pi by 4 is less than, this value is, if you simplify, कैलकुलेटर आपके पास अब है तो नहीं, अगर है तो आप चेक कर ले सकते हैं, 1/6, दिस tan एंड tan इनवर्स कैंसिल, -π/4 इज लेफ्ट। ये -π/4 को दोनों साइड अगर ऐड करें आप, π/4 प्लस 3/25 इज लेस सर देन, ये अपन कैंसिल क्यों कर दिए tan इनवर्स और tan π/4 को? अपने को रिजल्ट में क्या चाहिए? हाल इतना ही चाहिए, उसके साथ कुछ भी नहीं होना है। ठीक है ना? tan इनवर्स ऑफ 4/3 चाहिए अपने को, खाली 4/3, इसके साथ यस। कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए उसको वैल्यूज लिख के कैंसिल कर दे रहे। ये -π/4 को निकालने के लिए यहाँ से दोनों साइड +π/4 को ऐड करना पड़ता है। इनइक्वालिटी का रूल कैसा है? दोनों सेट ऐड करना, दोनों सेट सब्ट्रैक्ट करना, दैट्स योर रिजल्ट इज प्रूव। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग वर्ड था, ये आपका एंडिंग पार्ट। ठीक है, मैं बिफोर 5 मिनट्स आपको एक बार गो थ्रू करने के लिए टाइम देता हूँ। अभी अपन जाएंगे साइन के क्वेश्चन के पास। कॉस तो अपन कर चुके हैं, साइन एक बार कर लेंगे। ठीक है ना? ओके साइन, सर। कॉस, टाइन, ई पावर एक्स, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कौन सा पूछ सकता, वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता, बट इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइन वाला है, इसलिए हम लोग का कुछ शायद इंटरनल में भी दिए, शायद मैं भी दिया था, मैडम भी दिए शायद। प्रूव दैट 5/6 प्लस 1/5√3, 1/5√3 is less than sin inverse of 3/5 is less than 5/6 प्लस 1/8। अभी इसमें देखिए, खाली इतना ही है क्वेश्चन, इसके अंदर कहीं तो भी आपको मेंशन नहीं करे हुआ है आपको लेग्रेंज जिससे करना है या जो भी है। तो अपन क्या बोला, मैं आपको हिंट, वेन एवर प्लस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के फंक्शंस को अपन लेग्रेंजीस मीन वैल्यू थ्योरम लेते हैं। ओके, देन व्हाट इज आवर बेसिक रिक्वायरमेंट? एफ ऑफ एक्स शुड बी टेकन। व्हाट इज एफ साइन ऑफ एक्स? इनवर्स। यस, वेरी गुड, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। नाउ इफ यू फाइंड आउट डेरिवेटिव, अच्छा इंटरवल भी अपने को अज्यूम करना पड़ेगा, दैट इज जनरल इंटरवल a कॉमा b। नाउ इफ यू फाइंड आउट डेरिवेटिव f dash of x, दिस इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि इंटरमीडिएट में भी करे हैं, है ना? यस सर।
So we write here, therefore, f of x is continuous Continuous because it is trigonometric, and differentiable. continuous Differentiable. and differentiable on क्लोज इंटरवल ए का। अभी कोई आपके क्लास में ऑनलाइन पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो बोली। एंड ओपन इंटरवल Okay, sir. ए कामा बी रेस्पेक्टिवली, क्योंकि अभी अपना कॉलेज शुरू हो गया तो अपन टाइमिंग चेंज करने वाले हैं। मैं आपको अपडेट दे देता हूँ उसका। मॉर्निंग में नहीं पढ़ा सकते ना, आप कॉलेज में रहे तो अपन यहाँ पे नहीं पढ़ा सकते ना ऐसे, ठीक है ना। हाँ सर। मैं आपकी टाइमिंग शाम में कर देने वाला हूँ। बाय लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, बोलिए कमन बोलते जाइए। देयर एग्जिस्ट अ There पॉइंट exists a point सी बिलोंग्स टू ए कामा बी C belongs to सच दैट A comma B. एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू, F what dash is of it C is equal equals to F of B minus F of A by B minus A. to? F of b minus f of a by b minus a. Okay, now what is f dash of c? 1 by under root 1 minus c square is equal to f of b means it is sine inverse of b minus f of a means it is sine inverse of a Yes, sir. by b minus a. This is taken as equation number 1. अब वो एडवांटेज अपन लेंगे, हर क्वेश्चन को मैं सेम देखो, मैं हर हर एक प्रॉब्लम को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से नहीं करा रहा हूँ, एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। Yes, sir. C belongs to, since C belongs to a comma b, the meaning A of this comma is B. the value of C should lie between a and b. अब ये फॉर्मेट बनाना है, ये वाला स्क्वायरिंग करना, माइनस से मल्टीप्लाई करना, 1 को ऐड करना, रूट लेना और रेसिप्रोकल करना। तो स्क्वायरिंग यहीं पे करेंगे, यहीं पे कर सकते हैं आप एक स्टेप बचाने के लिए। तो A सब्ट्रैक्टिंग square less than माइनस C ए स्क्वायर, square. इफ यू मल्टीप्लाई विथ माइनस इनइक्वालिटी विल सी लेस देन विल बी कन्वर्टेड टू ग्रेटर देन, माइनस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस बी स्क्वायर। नाउ एडिंग 1, 1 minus a square is greater than 1 minus c square is greater than 1 minus b square. But if you take the root, nothing will happen. But if you change the 1 by form, reciprocal if you are doing, then less than will, greater than will be converted to less than 1 by under root 1 minus c square is less than 1 by under root 1 minus b square. This is 1 by under root 1 minus a square less than, इसकी वैल्यू अपने पास यहाँ पर अवेलेबल है, अभी बनाए अपन, ये फॉर्मेट बना लिए, फॉर्मेट को लाके इसमें सब्स्टिट्यूट करना है खाली। साइन इनवर्स ऑफ बी माइनस साइन इनवर्स ऑफ ए बाई बी माइनस ए by b minus a is less than 1 by under root 1 minus b square. So multiply b minus a on both sides. b minus a by root, अभी कभी यहाँ तक आपको पूछता रिजल्ट, इतना ही करना रहता तो आप लकी हो जाते वो टाइम पे। ऑटोनोमस में ऐसा हो सकता, और यू में तो मुश्किल है, यहाँ तक कि रिजल्ट पूछता, वैल्यूज असाइन नहीं करता, क्योंकि हम आपको लॉन्ग आंसर 6 मार्क्स का बनाए, 7 मार्क्स का नहीं बनाए, ठीक है। नाउ assign the values and get the answer, assign the values and get the answer. Okay, 3 now by 5 लेंगे. B is equals to वेरी गुड वेरी गुड। अब ये क्या लेंगे? A is equals to pi by 6. नहीं जी, साइन पाई बाई सिक्स, साइन पाई बाई Sin सिक्स pi बोल by दो। साइन 180/6 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है ना, yes साइन sir. पाई बाई सिक्स की वैल्यू 1/2 होती, सो वी हैव टू टेक इन दिस इक्वेशन नंबर 1, सॉरी 2,
assign the values, put b is equals to, what is that? 3 by 3/5. 5, 3 by 5, एंड a इज इक्वल, और एक इसमें एडवांटेज क्या है इस टाइप के प्रॉब्लम में, क्लियरली बोल रहा हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन चेंज नहीं होते, पॉइंट टू ओके पॉइंट सर। वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आपको मिलता है, यानी कि ए वैल्यू बी वैल्यू भी आपको ऐसे ही लेना पड़ता, कुछ नया नहीं देता उन्हें। सर ऑटोनॉमस में जैसा होता है या ओयू में भी ऐसे ओयू में होता है? भी, ओयू में भी ऐसे ही होता, ये क्वेश्चंस में नहीं होता चेंजेस। चेंजेस कहाँ होते हैं वो मैं आपको बाद में बोलूंगा। कुछ क्वेश्चन हम्म। वहाँ होते हैं जहाँ चेंजेस होने के चांसेस है, जिसमें मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस में चेंजेस हो सकते हैं। बॉडी ऑफ द नंबर्स में मैट्रिक्स, चेंजेस होते हैं। बॉडी ऑफ द मैट्रिक्स को चेंज कर सकता हूँ, एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पर अगर आप एलिमेंट्स को चेंज करें, रिजल्ट नहीं आते, प्रूफ जो करना है वो नहीं होता। स्पेसिफिक वैल्यू ओनली इफ यू टेक, देन ओनली विल गेट योर रिजल्ट। यस सर। बी माइनस ए इज 3/5, बट आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। अब मेरे है स्टूडेंट को सर। तो किसको भी साइंटिफिक कैलकुलेटर के बगैर मैं क्लास में एंट्री भी नहीं देता। 1 - b² = 9/25, ये पूरा फॉर्मेट आप कैलकुलेटर से कर लेना। इसका जो आंसर आ रहा, हाँ वो ये है, इसका आंसर आ रहा है, हाँ इसका आंसर देखो, ऐसा आता है एग्जाम के पेपर में, √3/15 आता है इसका, √3/15 आता है इसका आंसर, इज लेस देन साइन इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 कैन बी रिटन एज sin π/6, sin π/6, साइन 30 डिग्री, इज लेस देन, इसका तो डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा 1/8। ये साइन से ये इनवर्स कैंसिल, √3/15 कैन बी रिटन एज 5 × √3 × थ्री। √3, √3 × रूट √3 is थ्री। 3, 3 5s are 15, is less than sin inverse of 3/5 minus π/6 लेस देन 1/8। ये √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ये -π/6 को निकालने के लिए दोनों साइड +π/6 करेंगे, π/6 यहाँ पर भी ऐड करेंगे, प्लस 1/5 √3 इज लेस देन साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज लेस देन π/6 प्लस 1/8। अब आप देख लीजिए आपका वो आंसर पॉइंट टू पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट है, नथिंग विल बी चेंज, है ना, है नहीं है, देख लीजिए आप। पूरा है ना, पॉइंट टू पॉइंट, यस दैट्स योर सर। आंसर। तो कॉस में हो गया, टाइन में हो गया, साइन में हो गया, एक e⁻x वाला भी देख लेंगे। कभी कभी e⁻x वाला क्वेश्चन एग्जाम में देखे सता रहा, किधर किधर सता रहा वो आपको बोलता हूँ। अब देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखे सता रहा किधर बच्चों को, वो देखिए, शो दैट, शो दैट फॉर एनी, फॉर एनी x is greater than 0, x is positive here, 1 plus x is less than e⁻x is less than 1 plus x e⁻x, दिस इज द रिजल्ट। इतना ही है बस, कहीं पर भी कुछ भी हिंट्स इंडिकेशन क्या भी नहीं। तो हम आप उसको स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन में। व्हाट एफ ऑफ एक्स शुड बी टेकन, लेट मी टेल यू, आवर एफ ऑफ एक्स वैल्यू इज व्हाट, टेल मी। जो भी इनइक्वालिटी के बीच में रहता है वही आपकी एफ ऑफ एक्स वैल्यू, e⁻x लेना। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, यहाँ पर ट्विस्ट ये है, अगर आप इंटरवल 0, x लिए तभी ये रिजल्ट प्रूफ हो सकता, अदरवाइज a, b लिए तो नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम में अच्छे ओके। से मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करके रख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टार्स डाल के, और इसको अलग कलर से भी लिख के रखा, 0, x ही लिए इंटरवल तो ही ये क्वेश्चन का ये रिजल्ट प्रूव होता, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना। यस। तो एफ ऑफ एक्स तो आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स आप कर ले सकते, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x6 होता, नो चेंज। सो वी राइट हियर देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज
कंटिन्यूअस continuous and differentiable एंड डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन on क्लोज इंटरवल closed 0 interval comma x 0 comma x एंड and ओपन इंटरवल open interval 0 comma x respectively, respectively. respectively. So by LMVT, Lagrange's Lagrange's mean value mean value theorem. theorem, there There exists exists a point a point, C belongs to open interval 0 comma x, yes, very good, such that, mm, such that f dash c is equals to very f good, of b बोलते हैं, minus f of yes, a by b minus a. वेरी गुड, एक्सेलेंट बोले आप, करेक्ट बोले आप, मतलब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू होती ई पावर सी होती ना, Yes, sir. एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी बोलते ई पावर बी माइनस ई पावर ए बाई बी माइनस ए, बट अपने पास ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू है एक्स, जनरल इंटरवल से कंपेयर करेंगे। सो दिस इज, सही है ना, जनरल इंटरवल से कंपेयर करें तो ए इज 0, बी इज एक्स, राइट। Yes, sir. Yes. चलिए प्रोसीड, ई पावर सी इज इक्वल टू ई पावर बी वैल्यू इज एक्स माइनस ई पावर ए वैल्यू इज 0 बाई बी माइनस ए, मतलब एक्स माइनस 0, दिस इज ई पावर सी इज इक्वल टू ई पावर एक्स, ई पावर 0 की वैल्यू तो होती 1 बाई एक्स 1. माइनस 0 इज एक्स ओनली, दिस इज टेकन एज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब अपन वही, यही बेसिक पॉइंट को यूज करेंगे, सिंस जो हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं अभी तक वही करेंगे। सी बिलोंग्स टू 0 comma x, what do you mean by this? The value of c should lie between 0 to x, this implies that, बोलिए, बेस ई बनाएंगे ई पावर 0, बेस ई बनाएंगे ई पावर सी, बेस ई ई पावर एक्स, क्योंकि अपने को ई पावर फॉर्म में चाहिए ना जी, दिस इंप्लाइज Yes, sir. ई पावर 0 इज 1 इज लेस देन ई पावर सी की वैल्यू तो आपको मिल गई यहाँ पर, ई पावर एक्स माइनस 1 बाई E एक्स power x minus 1 by less than x. e power x, so multiply x on both sides, this implies x is less than e power x minus 1 is less than x e power x। अब ये माइनस वन को यहाँ से Multiply x हटाने के ना लिए, sir. हाँ दोनों साइड, दोनों साइड, अब ये वन को, ये नेगेटिव वन को यहाँ से हटाने के लिए दोनों साइड वन को ऐड करेंगे, 1 प्लस एक्स इज लेस देन ई पावर एक्स माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, लेस देन 1 प्लस एक्स ई पावर एक्स। अब आप देख सकते हैं आपने को जो रिजल्ट होना था वो प्रूव हो गया, बट क्या करने से हुआ, इंटरवल 0 कामा एक्स लेने से हुआ, ए कामा भी लिए तो पता ही नहीं आता है कुछ। हम्म, Yes, ओके, sir. तो ये आपके क्वेश्चंस आज की क्लास में जो अपन करे थे वो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड थे, 3 क्वेश्चन में सॉल्व करा, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ करने के लिए, आप इसको कर लीजिए, आप शायद कल अगर परसों जब भी कॉलेज आपका रहेगा तो मेरे को ला के बताइए ये करे सर बोल के। तो क्वेश्चन है आपका, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है, फंक्शन वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, आसानी दे रहा हूँ, बहुत मुश्किल नहीं दे रहा हूँ, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एंड हियर द इंटरवल इज 0 comma 4। ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन, ठीक है। एक और एक क्वेश्चन Yes, जो हम sir. लोग आईएसएल के लास्ट ईयर के पेपर में दिए थे ऑटोनोमस में, वो क्वेश्चन एक मिनट दोनों देख लेते, लास्ट ईयर आईएसएल के क्वेश्चन पेपर में हम लोग दिए थे जब ऑटोनोमस कॉलेज हो गया था ना अपना,
तो Yes, ऑटोनोमस sir. कॉलेजेस में हम ये क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन को रखे थे, वो बता रहा हूँ। ये हमारा आईएसएल का जो पेपर था, जो हम लोग लास्ट ईयर बनाए थे, इसमें जो क्वेश्चन हम लोग दिए थे यूनिट नंबर 2 में से, जो कि लेग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड मुझे दिख रहा है क्वेश्चन, वो ये था। देखिए, ये आप ट्राई करना है, ये दूसरा क्वेश्चन। ये हम लोग लास्ट ईयर दिए थे, और कोइंसिडेंट ये है कि हम इसको रेगुलर में भी दिए थे, बैकलॉग में भी दिए थे। तो क्वेश्चन ऐसा था, स्टेट लेग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम एंड फाइंड एंड फाइंड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, द वैल्यू, इवन दो ये क्वेश्चन क्वेश्चन बुक में भी नहीं है कहीं पर भी, बट हम लोग दिए थे। फॉर find the value of c for the function f of x is equal to x स्क्वायर माइनस 9x। रेगुलर में भी दिए, बैकलॉग में भी दी, दो बार दी। एंड हियर द इंटरवल इज 3, 6। अच्छा, अपन लेग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम रहने दो, रोल्स थ्योरम रहने दो, आगे चल के कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम भी आ रहा, वो भी रहने दो। हर जगह अपन सी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, देखिए आप, है ना। Yes, sir. सी वैल्यू ही फाइंड आउट करना है इसमें भी। तो ये हमारे आईएसएल का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। रेगुलर और बैकलॉग में दो बार कंटिन्यू दिए। ये रीडर में का क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक लेग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पर खत्म हो गया है। अभी नेक्स्ट जो आपकी क्लास रहेंगी वो रहेंगी कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर। तो कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम के साथ साथ टेलर थ्योरम पे भी क्वेश्चंस मैं करूंगा। वो दो टॉपिक्स अपन कर लिए, तो सेकंड यूनिट जो आपका है। टेलर्स थ्योरम में जरा वीक हूँ सर, मैं मेरे को समझ में नहीं आता टेलर्स थ्योरम। अपन यहाँ देख लेंगे ना, क्या अभी तक भी आपको क्या दिखा? अभी तक मैं क्लासेस आपको ले रहा हूँ ना, आपको कैसा दिख रहा? अच्छा दिख रहा सर, तो समझ फिर में आ आपको रहा। वो भी टेलर्स भी समझ में आ जाता है इंशाल्लाह, वो समझ, उतना परेशान होने की क्या जरूरत है। नहीं, मैं करा देता जी हूँ आपको, सर। बिल्कुल फिक्र मत करिए। टेलर सीरम सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, उसका कंफ्यूजन हो रहा है शायद आप। यस सर। टेलर सीरम थर्ड यूनिट में कैसा करना है, टेलर सीरम सेकंड यूनिट में कैसा करना है, उसकी क्लास इंशाल्लाह जब भी नेक्स्ट क्लास रहेंगी मैं आपको मैसेज करूंगा। उसमें अपन इसके साथ कॉचीज मेन वैल्यू थ्योरम जो छोटा है वो क्वेश्चंस करने वाले हैं, और उसके साथ साथ टेलर सीरम पे भी क्वेश्चंस करने वाले हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में। ठीक है, तो मैं ये मीटिंग को यहाँ पर एंड यस। कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट ओके क्लास में सर। अपन देखेंगे क्या करना है। ओके, यस थैंक यू। सर। थैंक यू सर।